हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉप गैप सॉल्यूशंस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आर्ट ऑफ डांस। सो दिस वीडियो इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द आर्ट एंड कल्चर सीरीज। सो इन द इंट्रोडक्शन पार्ट यू लर्न अबाउट द एस्पेक्ट्स ऑफ डांस। एज पर नाट्य शास्त्र जिसको लिखा है भरत मुनि ने। So according to that, there are two basic aspects of Indian classical dance. First is Lasya, then it's Tanda. What is Lasya? It denotes grace, bhav, ras, abhinay, and it's a symbolic of feminine feature of dance as an art form. So Lasya में हमारा feminine feature ज़्यादा depict होता है. And Tandav, this is the symbolic of male aspect of dance and has more emphasis on rhythm and movement. So this is the difference. इधर भाव रस और अभिनय ज्यादा होगा, यहाँ रिदम और मूवमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं. As per Abhinay Darpan is a text, Nandikeshwar's famous treatise on dance. An act has been broken into three basic elements. अब इसके तीन basic elements होते हैं guys. सबसे पहला है नृत्य. अब इसका स्पेलिंग्स आप ठीक से देखिए क्योंकि इसका नाम राइम सेम करता है. इट्स नृत्य, नाट्य एंड नृत्य. So nritta, it refers to the basic dance step performed by rhythmically but devoid of any expression of mood. अब यहाँ पे आप basic dance steps तो करेंगे लेकिन आपका यहाँ पे कोई expression नहीं आएगा. Then the second is natya. It means dramatic representations and refers to the story that is elaborated through the dance recital. अब यहाँ पे आपका dramatic representation होगा जिसमें कोई story जैसे कि कोई है तो उसको आप डांस के थ्रू रिसाइट करेंगे. Then it's nritya. Nritya refers to the sentiment and the emotions related to dance. It includes the mind and the different methods of expressions, including mudras in the dance. So guys, you know कि डांस में हम different मुद्रास का यूज करते हैं. So नृत्य में ही मुद्रा का यूज किया जाता है और इसमें बेसिकली सेंटिमेंट पार्ट को ज्यादा हाईलाइट करते हैं हम. Okay guys, so I hope we got the difference. So the next, okay, these are the different mudras. तो जब हम श्रृंगार करेंगे, that is for love, then Rodra, that is for fury, Vibhats for disgust, Veer for heroism, Shanta for peace and tranquility, Hashya for laughter and comedy, Karunya for tragedy, Bhayanak for horror, and Abhut for wonder. ये सब guys if you remember हमने अपने म्यूजिक वाले सेक्शन में भी किया था, as well as पेंटिंग वाले सेक्शन में भी इसका कुछ पार्ट था. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार हमको ऐसा मैच करने के लिए आ जाएगा, एक तरफ ये टर्म्स दे दिए जाएंगे एंड वन साइड दीज टर्म्स, तो उसको हमको मैच करना होगा. So further, there is a difference. Actually, guys, two types of dance are very famous here. One is classical and the other is folk. Folk or we can say regional. So difference between classical dance and folk dance is जो क्लासिकल डांस होते हैं उसमें स्पिरिचुअलिटी का फीचर ज्यादा होता है, ग्रेस, कंपोजर, प्रोफेशनल डांसर्स बेसिकली इसके हमको मिल जाते हैं देखने के लिए. जो डिफरेंट डांसर्स होते हैं और काफी सारे लोगों ने इसको पेट्रोनेज भी दिया होता है, जैसे किंग्स वगैरह जो पहले होते थे उन्होंने इसको पेट्रोनेज किया होता है. और जो फोक डांस होता है वो होता है हमारा सोशल गैदरिंग्स में, जैसे कोई भी फेस्टिवल टाइम हो गया या कोई किसी का शादी हो गया या किसी के यहाँ पे कुछ बर्थ किसी का हो गया, तो सोशल गैदरिंग्स जो होती हैं उनमें इन्हें परफॉर्म किया जाता है. इसमें काफी ज्यादा एनर्जी होता है, एंथुसियाज्म होता है और इसको कॉमन पीपल के द्वारा किया जाता है. इसमें कोई एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं होती है, नो एक्सपर्टीज. ओके, सो जो क्लासिकल डांस है अब हम उसको करेंगे. सो बेसिकली देयर आर 6 क्लासिकल डांसेस, वन बाय वन हम उसको स्टडी करते हैं. सबसे पहले आता है हमारा भरतनाट्यम. So it is the oldest among all classical dance forms. Bharatnatyam derives its name for Bharat Muni and Natyam, which means dance in Tamil. So Bharat Muni ka Bharat and Natyam means dance. However, other scholars have described the name to the Bharata to Bhav, Rag and Tal. So भरत को इन्होंने तीन उसमें डिवाइड कर दिया, भाव, राग एंड ताल. So जो भी आपको ठीक लगे you can pick it up. The origins from this dance form can be traced back to Sadir, the solo dance performer of the temple dancers और देवदासीज इन तमिलनाडु. सो बेसिकली ये तमिलनाडु का ही डांस है, तो वहाँ पे एक कल्चर चलता था गाइस, देवदासी कल्चर, तो वहां से ये डांस फॉर्म इमर्ज हुआ है. Hence it is also referred as दशियाट्टम.
ये गाइस ये आप याद रख लीजिएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, विच डांस फॉर्म इज नोन एज दासियात्तम आल्सो। देन विद द डिक्लाइन ऑफ द देवदासी सिस्टम द आर्ट टू बिकम नियरली एक्सटिंक्ट। अब देवदासी सिस्टम बिकॉज थोड़ा करप्ट हो गया था तो उसको फिर डिक्लाइन की तरफ चला गया, तो उससे ये आर्ट भी डिक्लाइन हो रहा था, एक्सटेंट हो रहा था। फिर अपने एफर्ट्स स्पेशली ऑफ ई कृष्ण अय्यर, a prominent freedom fighter, revived this dance form. Previously this dance form was the monopoly of solo female dancers। पहले इसको solo female dancer जिसको हम देवदासी कहते थे वही क्या करती थी। It has since become increasingly popular among the male and group artists as well। फिर इसको मेल आर्टिस्ट भी करने लगे। Rukmani Devi Arundel, another famous proponent of Bharatnatyam, is responsible for giving global recognition to the dance। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं गाइस, हमको थोड़ा थोड़ा याद रखना है। In the early 19th century, four dancers teachers of Thanjavur defined the elements of Bharatnatyam recital। इसमें सबसे पहले आपका आता है Alaripu। So it is an invocatory piece of performance which includes basic dance posture and is accompanied with rhythmic syllables। So basic dance posture आपका आ जाएगा जिसमें आपके थोड़े थोड़े syllables, rhythmic syllables होंगे और इसका मतलब होता है blessings of God। Then Jati Swaram, it is a pure form of dance including a different poses and movements। Guys, let me tell you आपको ये रिवाइज क्यों करना है, क्यों याद करना है, क्योंकि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अलरिपू, जाति स्वरम एंड आगे भी जो हम पढ़ेंगे ये टर्म्स किस डांस से रिलेटेड है या किससे रिलेटेड है। इवन दे आर रिलेटेड टू डांस और म्यूजिक और सम अदर कल्चर। तो ये हमें याद रखना है कि ये सब भरतनाट्यम से रिलेटेड है। देन शब्दम, it is a dramatic element which includes the abhinay in the song। It is generally in praise of glory of God। Then Varanam, this is a combination of dance and emotion। Varnam का मतलब डांस भी इमोशन भी, synchronized with ताल and राग। Padam, it refers to mastery over the abhinay, यानी कि जो आप facial expressions देंगे उसमें जो आपका mastery होगा, that is Padam। Then Javali, these are short love lyrics। ये याद रखिएगा guys, short love lyrics जो faster tempo पे perform किया जाता है। Then Thillana, it is a concluding stage of the performance and comprises pure dance with exuberant movement and intricate rhythmic variations। Okay guys, so ये classic आपका example है भरतनाट्यम का। The four Thanjavur teachers जिनको हम तंजौर क्वार्टेट बोलते हैं उनका नाम है चिनिया, पोनिया, वडेविलु एंड श्रीवंदनम। गाइस ये याद रखिएगा क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी हमारा यूपीएससी पूछा जा चुका है। Under them Bharatnatyam also came to be known as Thanjore Natyam। Then Bharatnatyam is often referred to as fire dance। अब गाइस जितने भी हमारे क्लासिकल डांसेस है उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट जो नेचर का वो डिपिक्ट होता है, तो भरतनाट्यम जो है उसे फायर डांस की तरीके से रेफर किया जाता है। Art is manifestation of fire in human body। Most of the movements in Bharatnatyam resembles to the dancing flame। If you can see here, all the movements if you can appreciate, ऐसा लगता है जैसे डांसिंग फ्लेम हो, आग जल रही हो कहीं। Then it is a dance form equal emphasis in given both, इसमें तांडव फॉर्म भी होगा, लास्य फॉर्म भी होगा एंड emphasis जो है वो मुद्रास पे ज्यादा दिया जाता है। One of the principal मुद्रास is कटक मुख हस्त। गाइस ये आपको याद रखना है, कटक मुख हस्त ये किससे रिलेटेड है, तो आपका भरतनाट्यम से रिलेटेड है। इन विच इसमें क्या होता है, आपका ओम का सिंबल बनाया जाता है तीन फिंगर्स को कंबाइन करके। In a Bharatnatyam recital, the knees are mostly bent। knees जो है वो झुके हुए रहते हैं। You can see here also, knees are mostly bent, and the weight is equally distributed across both the feet। It is also characterized by ekacharaslasyam। ये भी आपको टर्म की तरीके से याद रखना है। Style in which one dancer plays many different roles। अब इसके अलग अलग प्रोपोनेंट्स हैं जैसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्म सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई एंड एक्सेट्रा। So guys, that's it। अब हम पढ़ेंगे कुचिपुड़ी के बारे में। कुचिपुड़ी फ्रॉम आंध्र प्रदेश। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कुचिपुड़ी डांस। अब इसके कुछ फीचर्स देखते हैं हम। मोस्ट ऑफ द कुचिपुड़ी रिसाइटल्स आर बेस्ड ऑन द स्टोरीज ऑफ भगवत पुराण। ये गाइस हमको अच्छे से याद रखना है। बट हैव अ सेक्युलर थीम आल्सो। देयर इज अ प्रीडोमिनेंस ऑफ श्रृंगार रस। इसमें जो मुद्रा वगैरह जो यूज होंगी, जो भी कुछ यूज होगा वो श्रृंगार रस से रिलेटेड यूज होगा। Each principal character introduce itself on the stage with the दारू। अब guys दारू आपको ये याद रखना है, ये एक स्मॉल कंपोजिशन ऑफ डांस एंड सॉन्ग स्पेशली कोरियोग्राफ्ड फॉर द रिवीलेशन ऑफ ईच कैरेक्टर। अब जो भी कैरेक्टर होगा उसको रिवील करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, छोटा सा डांस और सॉन्ग का एक प्रोग्राम बनाएंगे जो कोरियोग्राफ किया जाएगा, उसी को हम दारू बोलेंगे। इंट्रोडक्टरी मान सकते हैं आप इसको।
द कुचिपुड़ी डांस स्टाइल इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द अर्थली एलिमेंट, जैसे कि उसमें फायर एलिमेंट था, इसमें अर्थली एलिमेंट है। द डांसर में कंबाइन द रोल ऑफ अ सिंगर इनटू हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ एज वेल, इसमें डांस भी कर सकते हैं, गाना भी गा सकते हैं, इसलिए इसको हम डांस ड्रामा परफॉर्मेंस बोलते हैं। बोथ लास्य एंड तांडव आल्सो हियर। देन अपार्ट फ्रॉम ग्रुप परफॉर्मेंस हियर आर सम पॉपुलर सोलो एलिमेंट्स, यहाँ पे ग्रुप परफॉर्मेंस भी होता है, सोलो भी होता है, उसका कुछ कुछ थीम होता है इंपॉर्टेंट, ये गाइस आपको याद रखना है क्योंकि ये थीम बार बार पूछ लिया जाता है। सो फर्स्ट इज मंदुक शब्दम, इसमें आपको स्टोरी ऑफ अ फ्रॉग है, उसको आपको डांस करना होता है। Then Tarangam, the dancer performs with her feet on the edges of the brass plate and balancing a pot of water on the head or set of diyas। ये तो गाइस आपने काफी ज्यादा देखा होगा तरंगम, जिसमें एक ब्रास का प्लेट होता है और जो उसके डांसर्स के जो फीट होते हैं वो इस प्लेट पे रखे होते हैं, वो डांस करते हैं। एंड उसके सिर के ऊपर ऐसे मटकी दिया कुछ ऐसे रखा होता है। देन जाल चित्र नृत्यम, इसमें जो डांसर होता है वो पिक्चर बनाता है अपने पैरों से वाइल डांसिंग। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे बनाएगा, लेट मी क्लियर इट फर्स्ट गाइस। या तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कलर्स रखे हुए हैं यहाँ पे, ओके। तो डांसर जो डांस करता है, जो डांसर डांस करेगा वो अपने पैरों से इन कलर्स को इधर उधर ऐसे ऐसे फैला देगा डांस करते हुए। तो अल्टीमेटली फाइनली जो रिवील होता है एक ब्यूटीफुल पेंटिंग निकल कर आता है। अलग अलग कुछ भी हो सकता है उसका, लेकिन वो अपने पैरों से इसका पेंटिंग बना देता है। सो द कुचिपुड़ी रिसाइटल इज जनरली अकम्पनीड विद, इसमें कार्नाटिक म्यूजिक होता है ऑब्वियसली, वायलिन एंड मृदंगम। एंड इसके फेमस प्रोपोनेंट्स है गाइस राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंदिरा रहमान एक्सेट्रा। So our next is Kathakali. So in temples of Kerala, two forms of dance drama, Ramanattam and Krishnattam, evolved under the patronage of feudal lords, narrating episodes from Ramayana and Mahabharata. These folk drama tradition later become the source of Kathakali. So Kathakali तो guys नाम से ही जैसे समझ में आता है, it's कथा plus कली. So इसमें कथा का होता है story and कली means drama. So however with the breakdown of the feudal setup, जैसे feudal setup जो था उसका जब ब्रेकडाउन होता है धीरे धीरे, तो कथकली रेस्ट्रेटेड टू डिक्लाइन एज एन आर्ट, बट इसको रिवाइव किया गया 1930 में बाय फेमस मलयाली पोएट वीएन मेनन, और मुकुंद राजा जो थे उन्होंने इसको पैट्रोनेज किया। देन कुछ फीचर्स है कथकली के। मोस्ट कथकली रिसाइटल्स आर ग्रैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इटर्नल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड इविल। आपको यूजुअली देखने को मिल जाएगा कि इसमें गुड और इविल का एक कॉम्बिनेशन दिखाया जाता है, एक तरफ गुड एक तरफ इविल, या फिर अगर एक ही इसको परफॉर्म कर रहा है तो वही अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू कभी गुड और कभी इविल दोनों का कॉम्बिनेशन दिखाएगा। देन आपके इसमें हाँ एपिक्स और पुराण दोनों का स्टोरीज मिल जाता है। कथकली इज रिमार्केबल इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द रास थ्रू मूवमेंट्स ऑफ आईज एंड आईब्रोज। गाइस इसमें बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है आंखों का एंड आईब्रोज, इसके लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करना पड़ता है, यूजुअली नॉर्मल पीपल कैन डू दैट। देयर इज मिनिमल यूज ऑफ प्रॉप्स इन द कथकली रिसाइटल। हाउएवर एलोबरेटेड फेशियल मेकअप, बहुत हाईली एलोबरेट फेशियल मेकअप किया जाता है, इसमें हेड गियर का यूज किया जाता है और जिसमें आपके अलग अलग कलर्स होते हैं। सो जो ग्रीन कलर होता है दैट इंडिकेट्स नोबिलिटी, डिविनिटी एंड वर्च्यू। रेड पैचेस इनसाइड द नोज इंडिकेट द रॉयल्टी, रेड मींस रॉयल्टी, एंड ब्लैक कलर इज यूज्ड टू इंडिकेट द evil and wickedness guys. So Kathakali is generally performed on open air theatres or temple premises covered with coarse mats. A brass lamp is used for lighting. The arrival of dawn, accompanied with the continuous sound of drums, chenda, madala, marks the beginning and the end of Kathakali recitals. तो जो starting होती है और end होता है उसमें drums, chenda, madala इन सब का वॉल्यूम आता है, आवाज आती है। देन कथकली सिंबलाइजेस द एलिमेंट ऑफ स्काई, जैसे उसमें भरतनाट्यम में आपका इट वाज फ्लेम, जलता हुआ। देन इन कुचिपुड़ी इट वाज योर अर्थ, और यहाँ पे आपका स्काई। इसके फेमस प्रोपोनेंट हैं गुरु पुंचकुरु एंड देन गोपीनाथ, देन रीटा गांगुली एक्सेट्रा। सो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग है यहाँ पे तो, बट अगर मान लीजिए ये सिंगल इंसान अगर इसको परफॉर्म कर रहा है तो इसका ये फेस देखिए आप, इसमें ग्रीन कलर भी है, इसमें रेड कलर है एंड इसमें ब्लैक कलर है। दैट्स इट। सो नेक्स्ट इज मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम फ्रॉम केरला. So features of Mohiniyattam, it combines the grace and elegance of Bharatnatyam with vigor of Kathakali. अब इसमें दोनों का combination हो जाएगा, Bharatnatyam plus vigor of Kathakali. Mohiniyattam generally narrates the story of feminine dance of Vishnu. जो विष्णु है हमारे उनका जो feminine अवतार होता है, feminine जो part होता है उसको ये depict करते हैं. The last aspect of dance is dominant in Mohiniyattam recital, hence it is mainly performed by the female dancers.
कॉस्ट्यूम इज ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, इसमें कॉस्ट्यूम का गाइस बहुत ध्यान दिया। वैसे तो सारे ही क्लासिकल जितने भी हमारे डांस होते हैं उसमें जो कॉस्ट्यूम होता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि उसी से आधा तो उसी से पता चल जाता है ये डांसर कौन सा डांस परफॉर्म करने वाला है। तो यहाँ पे भी कॉस्ट्यूम का उतना ही इंपॉर्टेंस है। और जो यूजुअली जो गेटअप होता है दैट इज ऑफ व्हाइट एंड ऑफ व्हाइट, इसमें प्रिंसिपल कलर होता है। द एलिमेंट ऑफ एयर इज सिंबलाइज्ड थ्रू द मोहिनीअट्टम परफॉर्मेंस, यू कैन सी दैट व्हाइट यहाँ, और यहाँ पे एक गोल्डन का इसका ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी आप देखेंगे परफॉर्मर वो इस टाइप का ही आपका कॉस्ट्यूम रखते हैं अपने ऊपर। देन इसके फेमस प्रोपोनेंट होते हैं सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन एंड एक्सेट्रा। सो ये जो आपका डांस है ये एयर को सिंबलाइज करता है। ओके, सो नेक्स्ट इज ओडिसी। So the caves of Khandagiri and Udaygiri prove some of the earliest example of Odissi dance. आपको यहाँ से कुछ earliest example इसके मिल जाएंगे। The dance from derives its name from the Odra Nritya mentioned in the Natya Shastra. It was primarily practiced by the Maharis and patronized by Jain king Kharvel. So जो खारवेल जो राजा थे उन्होंने इसको पैट्रनाइज किया था। With the advent of Vaishnavism in the region, the Mahari system became defunct. Instead, young boys were recruited and dressed as female to continue the art form. अब जब यहाँ पे वैष्णविज्म आ गया था तो ये महारी सिस्टम डिफंक्ट हो गया और उनकी जगह पे कुछ कुछ जो लड़के हुआ करते थे वो फीमेल की तरह ड्रेस करने लगे और डांस करने लगे। उन्हीं को हम गोती पुआ बोलते हैं गाइस। अब ये टर्म आपको याद रखना है, गोती पुआ इज कनेक्टेड टू ओडिसी डांस। Then another variant of this dance is Natala, continued to be practiced in the royal courts. And in the mid 20th century, Odissi gained international acclaim due to the efforts of Charles Fabry, Indrani Rahman. इनकी वजह से इसको international fame मिला था. Some of the features of Odissi dances is similar to Bharatanatyam in the use of mudras and posture to express emotions. The त्रिभंग पोस्चर, अब गाइस ये इसका फेमस पोस्चर है त्रिभंग पोस्चर। अगर आपसे पूछे कि त्रिभंग पोस्चर जो है वो किससे कनेक्टेड है तो इट इज रिलेटेड टू ओडिसी डांस। इसमें 3 बैंड होता है बॉडी का, 1, 2 और 3। आपको 3 जगह से बॉडी बैंड मिल जाएगा, ये इसका फेमस है। And an Odissi dance form is unique in its representation of gracefulness, sensuality and beauty. The dances create intricate geometrical shape. अब आपको यहाँ पे geometrical shape मिल जाएगा and with the body, hence it is known as mobile sculpture. So the elements of Odissi dance form include Mangala Charan, it is the beginning. Batu Nritya comprising of the dance, Pallavi which includes the facial expression, and Harijam again consists of प्योर डांस बिफोर द कंक्लूजन। कंक्लूड होने से पहले जो किया जाता है दैट इज हरिजाम। सो द कंक्लूडिंग आइटम ऑफ 2 टाइप्स, इसमें 2 टाइप के कंक्लूड किया जाता है। एक होता है आपका मोक्ष जिसमें जॉयस मूवमेंट्स होता है और जिसमें आपका लिबरेशन को आपको सिग्निफाई किया जाता है। देन त्रिखंड मंजुरा is another way of concluding in which the performance takes leaves from the god, audience and the stage. भगवान से, ऑडियंस से और स्टेज से वो अपना लीव आस्क करता है। Then Odissi dance is accompanied by Hindustani music. गाइस 2 टाइप के म्यूजिक होते हैं, क्लासिकल एंड हिंदुस्तानी, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं इसको। सो इधर जो म्यूजिक अकम्पनीड होता है दैट इज हिंदुस्तानी म्यूजिक। एंड यहाँ पे जैसे बाकी सब है वैसे यहाँ पे जो इसका जो एलिमेंट है दैट इज ऑफ वाटर। फेमस प्रोपोनेंट गुरु पंकज चरण दास, गुरु केलुक चरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, शरण लवेन, मायला बावी अर्जेंटीना से। So that's it guys. अभी इसका मणिपुरी डांस form finds its mythological origin to the celestial dance of Shiva and Parvati guys in the valleys of Manipur along with the local Gandharvs. The dance gained prominence with the advent of Vaishnavism. जब Vaishnavism वहाँ पे flourish हुआ in the Manipur region तब से इसका revival हो गया। In the modern times, Rabindranath Tagore brought back the dance form into limelight with the introduction Shanti Niketan. So जब बीच में ये dance form भी defunct हो गया था, देन जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने वहां पे शांति निकेतन बनाया उसके बाद ये फिर से रिवाइव हो गया। Some of the features of Manipuri dance are as follows. Manipuri dance is unique in its emphasis of devotion, not sensuality. अब यहाँ पे शिव और पार्वती का बेसिकली जो उसको किया जाता है डांस उसी फॉर्म में किया जाता है, तो यहाँ डिवोशन का फैक्टर ज्यादा होता है, सेंसुअलिटी उतना नहीं होता है। While the dance incorporates both तांडव and लास्य, emphasis जो है वो लास्य पे ज्यादा है। There is a limited use of mudras in the Manipuri dance. The focus is mainly on the slow, gracious movements of hand and knee positions. इसमें एक फेमस मुद्रा है गाइस, नागबंध मुद्रा। इसमें आप बॉडी को करेक्ट करते हैं इस तरीके से कि वो 8 का शेप ले लेती है बॉडी आपका, एंड ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पोस्चर होता है।
सो मणिपुरी का कुछ कुछ आपका फीचर्स है। मणिपुरी डांस इज यूनिक फेस्टिवल ऑफ डिवोशन। देन यहाँ पे ये तो है ही, हम मोस्टली पढ़ चुके हैं। ओके, रासलीला। रासलीला इज रिकरिंग थिंग ऑफ मणिपुरी डांस। बेसिकली रासलीला पे क्या आता है, और इसका रिलीजन से ही ज्यादा कनेक्शन रहता है, सेक्युलर थीम थोड़ा कम होता है। द ड्रम पंच जिसको हम बोलते हैं इज एन इंट्रिकेट एलिमेंट ऑफ रिसाइटल, कर्तस, ढोल एक्सेट्रा फ्रॉम द कंपनी म्यूजिक कंपोजिशन ऑफ जयदेव एंड चंडीदास आर यूज्ड एक्सटेंसिवली। अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये एरिया ड्रम जो लगाया जाता है, ये इसको हम पंच बोलते हैं। और इसके प्रोपोनेंट्स हैं झावेरी सिस्टर्स, नयना, सुवैना, रंजना, दर्शना, ये सब झावेरी सिस्टर्स हैं। देन गुरु बिपिन सिंह एटसेट्रा। So our next is Kathak dance. So Kathak is basically guys, it's a north region का डांस होता है ये, एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और ये यूपी में ज्यादा फेमस है गाइस। एंड फीचर्स इज डिफरेंट घरानास एज इट इज बेस्ड ऑन हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूजिक। अब हिंदुस्तानी स्टाइल अगर आपने म्यूजिक पढ़ा होगा तो उसमें अलग अलग घराना जो थे हमने पढ़े थे, तो ये उसी म्यूजिक के ऊपर किया जाता है, तो इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट घराना हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका लखनऊ घराना, देन जयपुर घराना, देन रायगढ़ घराना। सो लखनऊ में इट रीच्ड इट्स पीक अंडर द रेन ऑफ नवाब वाजिद अली खान, उन्होंने इसको काफी पैट्रोनेज किया था। देन इसमें आपका एक्सप्रेशंस और ग्रेस इन दोनों पे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंस है। देन जयपुर, इसको आपके भानुजी ने स्टार्ट किया, इसमें फ्लुएंसी, स्पीड और लॉन्ग रिदमिक पैटर्न्स होते हैं। देन रायगढ़, इट डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ राजा चक्रधर सिंह, इसका यूनिकनेस है परकशन मूवमेंट। देन आपका लास्ट है बनारस घराना, इट इज डेवलप्ड अंडर जानकी प्रसाद, इट सीज अ ग्रेटर यूज ऑफ फ्लो वर्क एंड लेस स्पेशल एम्फेसिस ऑन सिमेट्री। कथक डांस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ इंट्रिकेट फुटवर्क, इसमें बहुत ज्यादा फुटवर्क होता है। गाइस आपने ये मूवीज में कुछ कुछ पुरानी मूवीज में और टीवी पे देखा भी होगा, जो पैरों से वो जो बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट्स करते हैं डांसर्स, दैट इज नोन एज द इंट्रिकेट फुटवर्क। एंड द एलिमेंट्स ऑफ कथक रिसाइटल्स आर आनंद, आनंद और द इंट्रोडक्टरी आइटम थ्रू विच द डांसर एंटर्स द स्टेज। अब आनंद हम उसको बोलते हैं जिसके थ्रू इंट्रोडक्शन करते हैं डांसर्स अपना। देन थाट comprising soft and varied movements, todas and tukdas are the small pieces of fast rhythm। देन जुगलबंदी, गाइस दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये ऐसा है कि जो कभी भी पूछ लिया जा सकता है। तो जुगलबंदी क्या होगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपके तबला बजा रहे हैं, कुछ आपका इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, यहाँ पे ये डांसर है, तो आपने कई बार देखा होगा एक कंपटीशन टाइप चलता है इन लोगों में, ये बजाएंगे फिर ये डांस करेंगे, ये डांस करेंगे, ये बजाएंगे, तो देयर इज अ कंपटीशन टाइप ऑफ थिंग, सो जिसको हम जुगलबंदी बोलते हैं। देन पढ़ांत, इट्स अ स्पेशल फीचर इन विच डांसर रिसाइट्स कॉम्प्लिकेटेड बॉल्स एंड डेमोन्स्ट्रेट देम। देन तराना इज सिमिलर टू थिल्लाना, थिल्लाना जो हमने पहले पढ़ा था बिल्कुल, एंड इसको हम रिदमिक मूवमेंट्स होते हैं इसमें, प्योर और कुछ नहीं होता है। देन क्रामालय इज कंक्लूडिंग पीस, तो उसको कंक्लूड किया जाता है, उसको हम क्रामालय बोलते हैं। देन गाट भाव इज डांस विदाउट एनी म्यूजिक, इसमें कोई म्यूजिक नहीं होता है, उसको हम गत भाव बोलते हैं। देन कथक इज जनरली accompanied with the ध्रुपद म्यूजिक, taranas, thumris and ghazals were also introduced during the Mughal period. The famous proponents is Birju Maharaj, Lakshmi Maharaj, Sitara Devi, Damayanti Joshi, etc. Then now Satarya, it is the last in the section. So some of the features of Satarya dance is dance forms an amalgamation of various dance forms prevalent in Assam and mainly Ojapali and Devdasi. So the focus of Satarya recitals is on devotional aspect. Guys, ये भी devotion भक्ति religion पे किया जाता है, जिसमें आपके mythological stories of Vishnu. Dance is generally performed in group by male monks known as bhokots. जैसे वहाँ पे guys हमारा गोती पुआस थे, यहाँ पे इनको हम bhokots बोलते हैं. Khol and flute from the major accompanying instruments of this dance form. And the songs are composition of Shankara Dev के जो बोर गीत से उन्हीं के ऊपर ये डांस फॉर्म किया जाता है. There is a great emphasis on rhythmic syllables and dance postures along with the footwork. इसमें भी आपका लास्य और तांडव दोनों ही एलिमेंट्स होता है. Satarya dance traditionally has strictly laid down the rules in respect of hand gestures and footworks. So in modern times, Satarya dance has evolved into two separate streams, the Gayan Bhayanar Nach and the Kharmanar Nach. Guys, ये आप याद रखिएगा, गगन भयनार नाच एंड खारमनार नाच अगर पूछ रहे हैं किससे रिलेटेड है, सो इट इज फ्रॉम सतरिया ओनली. सो गाइज वो हमारा खत्म हो जाता है क्लासिकल डांस, ओके, जो हमको डीपली काफी पढ़ना होता है. नाउ वी स्टार्टिंग फ्रॉम रीजनल एंड फोक डांस. गाइज मैं अलग अलग स्टेट वाइज इसको डिवाइड कर दिया है, वो मैं आपको अभी बता दूंगी, और कुछ कुछ डांस को मैंने थोड़ा सा एलेबोरेट कर दिया है, बाकी आपको पता होगा कुछ कुछ डांस के बारे में क्योंकि ये कॉमनली बहुत फेमस होता है.
और कुछ कुछ डांस का मैंने इसमें इमेजेस भी लगाया हुआ है जस्ट टू आइडेंटिफाई द थिंग। बट आपको करना क्या है कि जो भी इसमें मैं बता रही हूँ आप ट्राई कीजिएगा कि कुछ कुछ नाम, कुछ कुछ डांस फॉर्म आप खुद से गूगल करके उनका इमेजेस देखिएगा जस्ट, तो आपको आइडिया लग जाएगा एंड यू विल आइडेंटिफाई कि कहाँ पे कौन सा डांस फॉर्म ज्यादा फेमस है। सो इसमें फर्स्ट जो हमारा है दैट इज इन आंध्र प्रदेश। सो विलासिनी नाट्यम, भामकल्पम, वीरनाट्यम, डप्पू, टापेटुगुल्लू, लंबाडी, ढीमसा, कोलतम, ये सब हमारे आंध्र प्रदेश के डांस है। इसमें फेमस है हमारा बुत्ता कुमालू, इसमें बास्केट टॉयज। ओके गाइस, ऐसा लगता है जैसे जो खिलौने होते हैं उस टाइप का इसमें डांस होता है। इसमें आप मास्क लगाते हैं खिलौने वाले, फिर आप उसको डांस को परफॉर्म करते हैं। और हमारा है बुर्रा कथा, सिंगल परफॉर्मर होता है और उसमें पुराणों की जो कहानियां होती हैं उसको परफॉर्म किया जाता है। देन अरुणाचल प्रदेश में हमारा बुइया, छालो, वांचो, पासीकोंकी, पोनू और पोपीट। असम का गाइस बहुत फेमस है हमारा बिहू डांस, ये जो आप फोटो देख रहे हैं दैट इज ऑफ बिहू ओनली। एंड इसको बोथ मैन एंड वुमेन रैपिड हैंड मूवमेंट्स के साथ करते हैं। देन बिचुआ, नटपूजा, महारास, काली गोपाल, बाबुरुम्बा, नाग डांस, खेल गोपाल। तो ये हमारे असम की है। देन बिहार में किया जाता है जाता जतिन, इसको जाता जतिन आप कह सकते हैं। ये एक हार्वेस्ट टाइम का डांस होता है। देन बाको बखैन, देन पंवरिया, ये जो दिख रहा है आप ये जाता जतिन का है। देन छत्तीसगढ़ में हमारा किया जाता है गौरमारिया, पंथी, राउत नाच, पंडवानी, वेदामाती, कापलेक। देन गुजरात में फेमस है गरबा, डांडिया रास, त्रिप्पनी, जुरिया, भवाई, ये तो गाइस बहुत ज्यादा फेमस है। ये तो सिर्फ गुजरात का नहीं पूरे इंडिया का ही फेमस हो गया है। देन गोवा में हमारा तरंगमल, होली, देखनी, फुगड़ी, सिंगमो, घोड़े, मोदनी, समाई नृत्य, जागर एंड रानमेली। सो गाइस इसको आपको क्या करना है, 2 से 3 बार एक बार आप पढ़ेंगे उसको तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कुछ कुछ सिमिलर नेम्स होते हैं तो फिर उसको आप स्टेट्स के साथ आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो मान लीजिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि ये सारे डांस हैं वो किस स्टेट से हैं, तो आप उसको एलिमिनेट कर पाए। दैट्स इट, आपको ये सारा रटना नहीं है, सारा मेमोराइज नहीं करना है। सो द नेक्स्ट इज आर स्टेट हरियाणा। सो द झूमर, दिस इज झूमर गाइस। एंड फाग, डाफ, धमल, लूर, गुग्गा, खोर। हिमाचल प्रदेश में झोरा, झल्ली, थाराही, धमल, छपेली, महासू। जम्मू कश्मीर में रौफ, हिकत, मंचदस, हुड, दांडी नाच। झारखंड में आपका अलका, कर्मा मुंडा, अग्नि, झूमर, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पाइका, फगुआ। देन कर्नाटक में आपका यक्षगना, हुतारी, सुगी, कुनीथा, कारगा। केरला में है आपका ओथमथुल्ला, काइकोटली एंड परिचाकली। गाइस ये जो है ये आपका परिचकली डांस है। देन महाराष्ट्र में लावनी, okay sorry guys, this dance form is from Lavani. And Nakta, Holi, Lazim, Gafa, Dahikala Das Avatar. So next is from Madhya Pradesh, Jawara, Matki dance, Ada Khara, फूलपति, ग्रीडा डांस, सलेला एंड सेला बलौनी। ये हमारा मध्य प्रदेश में किया जाता है। सो मटकी डांस का एग्जांपल ये रहा आपके सामने। देन मणिपुर, ढोल चोलम, थांगटा, लाई हरोबा, पुंग चोलम। देन मेघालय, काशड सुकमैनिज्म, नोग्रेम एंड लाहौर। देन मिजोरम में आपका छिराव डांस, खुल्लम डांस, छैलाम, साकालिन एंड छाओ लाइजाम, देन जंगतालाम। फिर आपका नागालैंड आ जाता है रेंगमा, बैम्बू डांस। गाइस ये आपका बैम्बू डांस का एग्जांपल है। जेलियांग, नुएरोलियंस, गेथिनलिंग। देन उड़ीसा में आपका सावरी, गुमारा, पैका, मुनरी। देन पंजाब में बहुत फेमस भांगड़ा, गिद्दा, डाफ, धमन एंड भान। ये सब आपके पंजाब में फेमस है। देन आपका राजस्थान में गाइस, राजस्थान में घूमर, चक्री, गनगौर, झूलन लीला, झूमा, सुइसनी, घप्पल, ये आपके राजस्थान के फेमस डांस है। देन सिक्किम में छाव फाट, शिकमारी, सिंगी छाम, ये गाइस आपका एग्जांपल है सिंगी छाम का। और याकछाम, देंगजो, गहना, ताशियंगू। देन आपका तमिलनाडु में कुम्मी, कोलाट्टम, कवाड़ी, ये जो है आपका ये कुमी डांस है। देन उत्तर प्रदेश, नौटंकी, रासलीला, कजरी छोरा, छपेली। त्रिपुरा में आपका होजगिरी, तो ये वाला आपका होजगिरी। देन उत्तराखंड, घरवाली, हुमायूं, काजरी, झोरा एंड रासलीला। सो गाइस
जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि आपको इन सबको मेमोराइज नहीं करना है, आपको इसको 1 2 3 बार सिर्फ देख लेना है, एक बार इनके नाम पढ़ लेने हैं, जिससे आपको ये दिमाग में रह जाएगा कि कौन कौन सा ग्रुप ऑफ डांस है जो किस स्टेट से है, जिससे आपको इजीली आप उसको एलिमिनेट कर पाएंगे, और वही हमारा पर्पज है। दैट्स इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। सो इफ यू फील दिस सेशन वाज वर्थ वाचिंग और आपको थोड़ा सा मजा आया हो इसको पढ़ने में, so please like, comment, share and subscribe. Thank you. Thanks for watching. Have a nice day.